my own skin. 2 minutes is just a scam. There you go with your ghost portal. Oh my gosh, after Tare Zameen, everyone was like, our parents are gonna send us to boarding school. We were real human beings and I used to think they were animated. मेरी उससे कभी भी wish पूरी नहीं हुई. I still don't get it, like sometimes I still do it and it feels so weird and dumb, but I still do it. I don't know why. Oh gosh, Santa was a scam. We'll all see it. Like, it's not true at all, but I'll prove everyone wrong. Hey everyone, it's Miss Stella XP and welcome back to my channel. सबने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं. Like we used to do these things repeatedly in our childhood, but it was never of any use. I still do some of those things. I don't know if you do it or not, but let's start so that I can see if you relate with me or not. दिस इज माई फर्स्ट वन एंड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगा क्योंकि ओ गॉश लाइक आई वॉज गोना टॉक अबाउट घोस्ट एंड माई सिस्टर सडनली अपीयर्ड ब्रो. भाई मेरी जान निकल जाती है अभी और तू आई भी इतनी धीरे धीरे. तू भूतों की तरह क्यों आती है? सो द फर्स्ट वन इज व्हेन वी टर्न ऑफ द लाइट स्विच a ghost portal opens. ये मुझे समझ में नहीं आता कि why this happens with everyone. Maybe because हमने ghost stories या ghost movies में देखा है, but it's really scary and I still relate with it. I don't know if you do it or not. If I'm turning off the light switch and I'm going downstairs, I always have my sister with myself. My sister turns off the lights and then we go downstairs together. I'm not the one who turns off the lights because ये मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है. I don't know मेरी बहन के साथ इतना relatable क्यों नहीं है. Sometimes it is and sometimes it is not. अगर आपके लिए भी relatable है then comment it below. So I don't know ये second one भी किस किसने करा है, but most of the people जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने ये चीज़ कर रखी है जो कि है राइस के कंटेनर में हाथ डालना. I don't know why we do it, but we just do it. मतलब ना इसका रीज़न मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता, लेकिन इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, द फील दैट इट गिव्स अस. वो बहुत ही ज़्यादा अडिक्टिव होती है, तो मे बी दैट्स वाई. बट आई डोंट नो, मुझे भी अच्छा लगता है. इवन टिल टुडे आई डू दिस. एज किड्स वी ऑल डिड इट. और दिस थर्ड वन ये बहुत सिली है और इसमें हम सब बिलीव करते थे. और ये है वाटरमेलन की सीड्स खाने के बाद a tree will grow out of your stomach. एक टाइम पे it haunted me, it scared me, but when I was fond of watermelons, I was like, we don't need to buy them anymore because I can grow them by myself. Again, it's dumb. Now our next one is something that maybe is relatable to some girls or some boys. I don't know if boys के लिए relatable है या नहीं है, but for females it is relatable because I know. This is a clutcher and I was talking about doing this. Why? Like I can't do it right now, but we used to put it on our mouth, on our lips, and we used to close our mouth. Like why? क्योंकि ये तो बहुत hurtful था. I'm not gonna lie. ये बहुत ज़्यादा hurtful था, but still we did it. Like it reminded me of a song that is "Dumb Ways to Die." Anyways, this was so painful and this is so painful right now for me. क्योंकि मेरे nails के अंदर घुस चुका है. इसको हम साइड रख देते हैं. But हाँ, I don't know why, but we did it. अब ये जो next वाला है, ये मुझे नहीं समझ में आता. But when I didn't decide कि मैं ये वाली वीडियो बनाने वाली हूँ, I did the same thing. I had this bottle and I took its cap, ये, and I poured some water in it and then I drank it. I don't know why, but we all did it. Like मेरे को समझ में नहीं आता. We were so weird in our childhood कि हमने इतनी weird चीज़ें करी हैं. बस मैं तो बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ये चीज़ करी है, तो मैं बचपन पे तो इस चीज़ को डाल नहीं सकती. You know what? In 12th class, some of my teachers and my classmates used to call me childish, in all the ways, in good ways as well as some bad ways. And now I can understand why they said that to me. I know कि ये वाली चीज़ जो है ये भी हम सब ने करी है, जो कि है स्विचेस को बैलेंस करना. लाइक इफ देयर इज अ स्विच एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट. ना मैं उसको बंद होने दे रही हूँ, ना मैं उसको ओपन रहने दे रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट लाइक स्ट्रेट. और पता नहीं क्यों लेकिन उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था. लाइक
another level of satisfaction, क्योंकि जैसे वो बैलेंस हो जाता था उसकी खुशी अलग ही होती थी कि वाओ आई डिड इट फाइनली, बट इट वाज वियर्ड. Maybe I've seen a lot of people doing, like not just me, जो कि है फ्रिज की जो लाइट होती है उसको भी ऐसे बैलेंस करना, जैसे कि हमें पता चलता है कि हाँ पहले तो पता ही नहीं होता है लाइट आ कहाँ से रही है, एंड व्हेन फाइनली हमें पता चल जाता है कि हाँ ये रहा इसका स्विच. नाउ अगेन वी ट्राई टू बैलेंस इट. लाइक हमें समझ में नहीं आता बचपन में हमें क्या लाइट या स्विचेस से ऐसा क्या रिलेशन होता है हमारा बचपन में, लेकिन हम वी आर जस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस इट. इट्स एन अनदर थिंग कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे कुछ बैलेंस नहीं हो पाता, बट या हमें लाइट्स बैलेंस करने का बहुत शौक होता है, स्पेशली ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. अगेन आई एम फीलिंग लाइक सो डम बिकॉज आई स्टिल डू इट, एंड इसका कोई मतलब नहीं है. इट जस्ट मीन्स कि आई एम वेस्टिंग माई ग्लू. लाइक आई कम्प्लीटली पोर फेविकॉल ऑन माई पाम एंड देन आई जस्ट स्प्रेड इट एंड आई जस्ट लेट इट ड्राई, और फिर उसके बाद it looks like my own skin, and उसके बाद I just pretend like it's my skin and I'm peeling off my skin. I did it a few days ago so I can't say anything, but आप भी ये सब करते हो अभी भी? Let me know in the comments. Now let me tell you one thing. Santa was the biggest scam of my life. I don't belong to Christianity, but still I had that craze of Santa like everyone does, but I was like always expecting gifts from Santa when I was a kid, and a great thing was that my mother was my Santa, my real life Santa. I mean till this date whenever I ask for anything I get it. Like मुझे विनतियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. She just gives me whatever I want. Like one day I'm saying that I want this and the next day हाजिर है. So thank you mama for providing me all the things that I've ever wanted in my life. You are my real life Santa. मैं जब छोटी थी तो मैंने ऐसे पहले जब पता नहीं होता तब तो you are so dumb ना कि हाँ जो आपको बताया जाएगा जो आप देख लोगे you will believe in it. So I used to watch Shinchan and Doraemon a lot, and Doraemon में Santa वाला thing बताया, and Christmas was gonna come. Like it was Christmas Eve. No, a day before Christmas Eve, and I said it to my mama that mama, listen to me, Santas exist करते हैं या नहीं करते हैं? And she was like, why are you asking this? And मैंने कहा कि mama, this is the whole thing कि हाँ मैंने ऐसा डोरेमोन में देखा है and all. And she was like, हाँ होते हैं. I was so happy क्योंकि मैंने तो पूरी लिस्ट बना दी कि मुझे क्या क्या चाहिए, and oh my gosh, like whatever I wrote in that list उसमें 12 to 13 अराउंड समथिंग कुछ मैंने आइटम्स लिखे थे. वो बहुत सारे आइटम्स थे एंड सम ऑफ देम वर एक्सपेंसिव ऑल्सो. यू नो वॉट, नेक्स्ट डे लाइक मैंने लिखा एंड मैंने लाइक माई मदर टोल्ड मी कि इसको ना लिख के अपने तकिए के नीचे रख देना तो सेंटा नेक्स्ट डे तुम्हें आकर सारी चीज़ें दे देगा. एंड मैंने कहा ऑल राइट, एंड मैंने पूरा लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी एंड मैंने बस मेरे पिलो के नीचे उसको रख दिया. एंड for real the list was gone the next day and all the gifts were there. I believed it was Santa who bought those for me and I didn't know about it. Like Santas never existed. When I grew up and I got to know the truth, and finally then my mother was like ओके तो अब पता चल गया. और ये जो था ना ये ऑल दोज ईयर्स मेरे साथ होता रहा कि आई यूज टू गिव दैट लिस्ट टू सेंटा, my mother, and she used to bring those gifts for me and I never got to know about it until and unless I found it by myself. Then I was like mama, and I cried and I was like mama मुझे लगता था it was Santa. Santas नहीं होते. और मेरा तो एक ही क्वेश्चन भी था कि मैंने हमेशा देखा था कि चिमनीज में से आते थे, बट हमारे तो चिमनी भी नहीं थी तो वो आता कहाँ से था? It was the biggest scam for most of us. हाँ ये तो world wide scam है. Now our next one is super duper weird but somehow it made sense. I don't know how and why. And वही चीज़ है कि when we eat chewing gum वो हमारे पेट में जाकर चिपक जाएगी and then our organs will stick together. Like हमारे जो जितने भी organs हैं वो सब stick हो जाएंगे and I don't know something happens and then I'll die. ऐसा पता चला है कि it's not true but
आई कांट हेल्प इट, लाइक बचपन से अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो मैंने एक बार तो लाइक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि बचपन में मेरी आदत थी, मैं मतलब आई डोंट नो मैं कितनी पागल सी थी, बट मैं जैसे ही च्युइंगम्स खाती थी मुझे पता नहीं चलता था, मैं उनको बस खा जाती थी। आई एम ईटिंग अ टॉफ़ी एंड मैं बस उसको स्वेलो कर लेती थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को उसके बाद मर जाना चाहिए था। एंड आई क्वेश्चन दिस टू मम्मा, शी वाज लाइक कि ना, वो मे बी अ मिरेकल कि यू सर्वाइव्ड। एंड आई वाज लाइक ये I hated death. So this next one is maybe relatable to girls only. मुझे नहीं लगता कि boys भी इसमें believe करते हैं, but हाँ girls तो बहुत सारी करती होंगी. It's about tooth fairies. It's basically a myth, like it's not true at all कि आपका जब first दांत टूटेगा तो you will keep it inside some maybe match box or I don't know, and you just keep it under your pillow and then you will get something great the next day, like you will get some gift or I don't know, you will get just something. You just have to make a wish and then you will meet tooth fairy and blah blah blah. Oh my god, मेरे इतने सपने तोड़े हैं ना इन myths ने. I just hate myths and I'm gonna make a video on that also. But yeah, मेरे को ये कंसेप्ट पता चल गया था उससे पहले कि मेरा फर्स्ट टूथ निकले. एंड मैंने जैसे ही मेरा फर्स्ट टूथ ब्रेक हुआ मैंने वो लिया एंड वो माई मदर वाज लाइक इसको फेंक दे, इसको क्या ही करेगी संभाल के. आई वाज लाइक ना, I'm gonna meet tooth fairy today. She was so disgusted, but still I kept it under my pillow and waited for tooth fairy to meet me. जो कि कभी नहीं हुआ. और फर्स्ट टाइम में तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझसे ही कोई गलती होगी. तो मैंने जब सेकंड टूथ निकला तब भी मैंने ये सेम प्रोसेस रिपीट करा एंड नथिंग हैपेंड. एंड तब मुझे पता चला कि इट्स ऑल फेक. नाउ दिस वन इज सो ट्रेंडिंग टिल टुडे ऑन इंस्टाग्राम रील्स. ये है फॉरवर्ड दिस और एल्स दिस विल हैपन और लाइक इफ यू लव योर मदर एंड फादर देन डू दिस और दैट. तो जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब तो ये सब इतना फेमस था नहीं, तो बहुत कम लोगों के पास इसके बारे में नॉलेज होती थी, तो कोई ऐसा था नहीं. ये चीज़ बताने वाली, प्लीज़ डोंट लाफ एट मी. मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम ओपन करा था 10th क्लास में एंड तब आई गॉट दिस टाइप ऑफ रील जिसमें था कि डू दिस, लाइक फॉरवर्ड दिस, लाइक दिस, कमेंट दिस, अदरवाइज this will happen, that will happen. Like it was related to something ki you don't love your mother and kind of like that. And I was like, No, I do like my mother. Being a foolish person, I used to send it to all of the persons that I added on my Instagram account. All of those people used to get so pissed off, like they used to be like, she believes in these things. Like मैंने myths वगैरह पे बहुत believe करा है till 10th class, but after that I was exposed to social media. I got to know कि नहीं भाई, भी आता था कि फॉरवर्ड दिस और घोस्ट विल हॉन्ट यू. तो मैं घोस्ट के चक्कर में उसे सेंड कर देती थी बहुत सारे लोगों को कि हाँ भाई एक भी चांस नहीं मिलना चाहिए घोस्ट को कि वो इस रील को देखे और आकर मुझे हॉन्ट करे. आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन दीज थिंग्स लाइक स्पिरिट्स एंड घोस्ट, बट once something happened to me and it was a horrible experience. and उसके बाद से भाई तो मुझे क्यों डराने पे तुली हुई है. जैसे ही मैं भूतों की बात करती हूँ तो आ जाती है. What do you want from my life? इधर आजा आजा, देखो लूंगी भी ना, हटा दूंगी ना, क्रॉप कर दूंगी. आजा. क्रॉप नहीं करूंगी, दिखाऊंगी मैं. मेरे को बहुत डर लगता था. हाँ, तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है. इफ यू वांट टू नो अबाउट इट then comment it below. like मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती because I'm so hella scared after it, but if you would want to know then I'm always there for you. उस बारे में बात नहीं करता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करती. whenever I talk about it, like something happens to me, like either I feel something or I don't know, but something happens to me. I just feel a lot of negative vibes, so I just never talk about it. but if you want to know then comment it below and let me know about it. Anyways, so ये जो था कि फॉरवर्ड दिस इज सो वियर्ड एंड चाइल्डिश एंड ये ना एक हद तक मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है. कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं एंड यू आर जस्ट केयरिंग देम टू गेट लाइक्स एंड फॉलोअर्स. सो इट डजंट मेक सेंस टू मी कि वाई डू पीपल डू दिस. लाइक आई नो यू वांट लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स, बट यू आर जस्ट केयरिंग दोस किड्स बिकॉज उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है ना. दे आर अनअवेयर ऑफ इट एंड यू आर जस्ट स्केयरिंग देम, यू आर जस्ट स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ देम. इट्स सो बैड दैट यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर गेटिंग फेम एंड लाइक्स एंड कमेंट्स. इन चीज़ों को गेन करने के लिए इतना गिरना नहीं चाहिए.
you are giving someone a trauma maybe after doing it, you should just ignore and avoid doing it. Trust me, it's so weird. Like I had a trauma about it कि हाँ भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. So I used to feel so weird. You should just avoid doing that. Anyways, बच्चा पार्टी, if you are listening to me, just trust me, ऐसा कुछ नहीं होता. मत लाइक करो, मत सब्सक्राइब करो, मत फॉलो करो, ऐसे लोगों को तो करो ही मत. ऐसा कुछ नहीं होता. इस क्रैप में बिलीव मत करो. Everybody is safe. Just stay away from such reels and such accounts and live a happy life. ओके सो ये वाला भी एक बहुत बड़ा मिथ है एंड बहुत बड़ा स्कैम है जो हमारे साथ हुआ है एज किड्स, जो कि है मैगी जो है वो सिर्फ 2 मिनट्स में बन जाती है एंड ये एक यूनिवर्सल स्कैम है. लाइक जितने भी लोग मैगी खाते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वो 7 to 9 मिनट्स में बन जाती है, बट नॉट लेस देन दैट. उससे पहले वो कच्ची रहती है. आई डोंट नो कौन लोग हैं जो इसको 2 मिनट्स के अंदर बना लेते हैं. It's an instant noodle but not instant noodle. Like you are getting my point, right? Like I was that kind of person जो एक मैनुअल फॉलो करती है एंड उसमें लिखा है कि अगर 2 minutes that means 2 minutes, that's it. एंड मैंने ये चीज़ करी एंड मैंने ये चीज़ फॉलो करी एंड 2 मिनट्स में वो नहीं बनी एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. I don't know if it's only famous in India or somewhere else also, but if any of your eyelashes falls and you just take it and put it here and just make a wish and boom, like your wish is gonna come true, that's false. I always used to be like कि yeah, मेरी कोई विश पूरी ही नहीं हुई. मतलब इसके बिना मेरी जो विशेस हैं वो जरूर पूरी हो गई, बट जो मैंने इसके साथ करी थी वो तो कभी पूरी नहीं हुई. इट्स कम्प्लीटली फॉल्स. डोंट बिलीव इन दिस. लाइक अगर अभी कोई बच्चे मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो में देन वो लोग मुझे कितना पागल समझ रहे होंगे, बट बच्चा पार्टी इट्स जस्ट नॉट मी, इट्स द होल जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली. एंड इफ यू आर अ बच्चा एंड देन यू आर स्टिल डूइंग इट, यू आर ऑल्सो डम. I'm sorry, but it's the eternal truth. Okay, so next one is pretending that I'm drinking a wine when I'm only drinking Mountain Dew or other stuff. Like I used to drink apple juice and I used to show like I'm drinking a wine. और वैसे वो होते हैं जूस के glasses, you know, drink वाले जो glasses होते हैं, and pretending that I'm drinking a wine. ये मैंने देखा है कि हाँ सिर्फ मैंने नहीं करा है, बहुत सारे लोगों ने करा है. I've seen people doing it and I don't know, but it was so fun. We used to think like drinking is so cool. So ऐसा cool सा feel होता था. हाँ, I'm drinking, like I'm so cool, but now I know it's so injurious to health and now I don't do it, and you should not do it if you're doing it too. Drinking Pediasure and Complan was also one of the biggest scams of my life, क्योंकि मुझे पीडियाश्योर का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था एंड कॉम्प्लेन का भी टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था. मैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्नविटा पीती थी. बट मुझे इन दोनों का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता था, स्पेशली पीडियाश्योर, क्योंकि इट यूज टू टेस्ट लाइक सो यक, लाइक इट यूज टू टेस्ट लाइक वॉमिट. And my mother used to force me to drink it and I had to drink it. I just hated it. एंड लेट मी जस्ट टेल वन थिंग कि ये दोनों थे हाइट इंक्रीज करने के लिए. सो द स्कैम वाज दैट कि इनको पीने से मेरी हाइट बढ़ेगी, बिकॉज लाइक आई एम जस्ट 5 feet taller एंड इट्स जस्ट नॉट ट्रू. नाउ दिस वन आई नो कि सबका चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है, जो कि है बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाना. I could do not, but मेरा बचपन में ऐसा था कि हाँ मम्मा मुझे तो जाना है बोर्डिंग स्कूल. आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा ऐसा था क्योंकि कुछ ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स थे जहाँ पे यू नो हॉर्स राइडिंग कराई जाती थी एंड स्विमिंग कराई जाती थी एंड माँ की एग्जैक्टली वही फीस थी जो कि मेरे स्कूल की थी. बट मेरे स्कूल में सब कुछ भी नहीं था, तो आई वाज लाइक कि मम्मा मुझे तो बोर्डिंग स्कूल में भेज दो एंड ऑल. एंड आई डोंट वांट टू टेक इट्स नेम, बट हाँ बहुत फेमस बोर्डिंग स्कूल है एंड मुझे तो था कि मुझे तो भेज दो. बट इससे पहले मुझे भी ट्रॉमा था, बट उसके बाद मुझे ये चीज़ हुई कि हाँ आई कैन लिव देयर. बट जब मैंने तारे ज़मीन पर देखी थी तो इसने मेरा ट्रॉमा जगा दिया एंड तब मेरा था कि नहीं आई वोंट डू एनीथिंग. माय मदर यूज्ड टू बी लाइक ये मत करो ना तो हम बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे. ना आई यूज्ड टू बी लाइक आई वोंट डू इट, जस्ट प्लीज डोंट सेंड मी देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ होता होगा, जो कि होता भी है कई बार. बट आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ मेरा बचपन में इसमें इंटरेस्ट भी आया था. अगेन आई वाज सो वियर्ड, बट हाँ मैं इसमें एक टाइम पे इंटरेस्ट भी आया था, जो कि बहुत अजीब चीज़ है. बट ये चीज़ तो मैं सबका जानती हूँ कि तारे ज़मीन
मूवी दिखाने के बाद पेरेंट्स ने कितना ज़्यादा बच्चों को बोला है कि हाँ, इतनी सारी थ्रेट्स दी हैं कि इफ़ यू विल डू दिस तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और फिर तुमने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है ऑलरेडी, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पे बहुत बिलीव कर रखा था सब लोगों ने, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि डीप इनसाइड आवर पेरेंट्स यूज्ड टू बी लाइक हम तो इन्हें कहीं भेजेंगे ही नहीं। व्हेन देयर किड्स आर यंगर, तो तब पेरेंट्स नहीं अलग कर सकते अपने बच्चों को इतनी छोटी एज में। लाइक मूवी में ऐसा दिखाया होते होंगे कुछ लोग, बट माई पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकते व्हेन देयर किड्स आर जस्ट किड्स। अब मेरे को ना नहीं पता कि ये चीज़ आप लोगों ने भी फील करी है, सिर्फ मैं ही थी जिसने ये चीज़ फील करी। एक्चुअली ना बचपन में व्हेन आई वाज एक्सपोज्ड टू मूवीज एंड ऑल, तो जैसे कि मेरे को लगता था डोरेमोन, शिनचैन एंड ऑल दे आर एनिमेटेड, तो ये जो है जैसे सलमान खान एंड ऑल, मेरे को लगता था शायद ये भी एनिमेटेड है, दीज आर ऑल्सो नॉट रियल ह्यूमन बीइंग्स। आई यूज्ड टू बिलीव दैट। और मुझे बाद में पता चला था कि नहीं, ये रियल ह्यूमंस होते हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग एक्टिंग। एंड आई वाज लाइक ओह, मुझे तो लगता था कि जैसे बाकी कार्टून्स होते हैं ये भी उसी के तरह हैं, दीज आर ऑल्सो एनिमेटेड, दीज आर नॉट रियल पीपल। वो था वियर्ड था मेरे लिए, बहुत शॉकिंग था ये। आई डोंट नो कि किसी और के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, बट ये मेरे साथ हुआ है एंड मेरे लिए तो इट वाज सो शॉकिंग कि भाई मैं तो पूरा चाइल्डहुड मेरा बहुत अजीब ही हो गया यार। मैंने जिन चीज़ों पे बिलीव करा था वो सब चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और जब मुझे पता चला कि शायद ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं ऑल, तब एक टाइम पे आई वाज लाइक कि शायद डोरेमोन एंड ऑल ये भी रियल होते होंगे, बिकॉज डोरेमोन वाज अ रोबोट and I was so weird. I just can't explain the weirdness, the level of weirdness. And this is the last one, which is said to many girls. It's like if you drink water or eat directly from कढ़ाई, then आपकी शादी के दिन बारिश ही बारिश होगी। And how does it even make sense? Like कभी किसी की शादी पे हुआ होगा ऐसा, cause उसने बचपन में खाया होगा कढ़ाई से, but that doesn't make sense. How is this logical? But again we used to believe in it and मैंने एक बार पी लिया, मैं दादी जी was like ऐसा होता है and I was like shit bro। मेरा तो सपना था कि मैं बाहर ऐसे like लेक के पास शादी करूँगी एंड पर्दा होगा सामने, फूलों का एंड ऑल वगैरह वगैरह, बट मैं तो सारे सपने चूर चूर हो गए थे, क्योंकि अब तो मुझे पता चला था कि मैं बाहर शादी कर ही नहीं सकती, वरना बारिश ही बारिश आ जाएगी एंड देन मम्मी की मैं ड्रेस एवरीथिंग विल बी रूइंड। तो मैं तो भाई बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी सुनने के बाद कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मैं इसको वापस बैक नहीं कर सकती है ना। एंड आई वाज लिटरली आस्किंग हर कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे ये वापस मैं सही कर लूँ। एंड शी वाज लाइक नाउ नथिंग कैन बी हैपन। एंड आई वाज लाइक ओके, बट नाउ आई नो कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ आई एम अगेन हैप्पी कि मैं बाहर शादी कर पाऊँगी। बट हाँ, it was also weird for me. So guys, यही थे आज के हमारे कुछ myths या चीज़ें जिन चीज़ों में हम लोग बिलीव करा करते थे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, या फिर जो चीज़ें हम करा करते थे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जो कि never made any sense, but still we did it because we just liked doing it. Like some things were so unrealistic and very satisfactory at some point. We can't judge ourselves क्योंकि simple सी बात है, we were just kiddos and we were so innocent for this world, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। When we grew up, we got to know about the real world and still we are just teens and some are young adults, so we don't know what the whole world is. We'll get to explore it. I just want to say some things, like I was calling myself dumb the whole time. You should never feel dumb about these things because we were just kids and we were just so innocent. So that's all for today. If you liked my video or liked me or my content, like video के अंदर content है, but if you like this video or me, then please subscribe this channel. And if you don't like me or this video, then no worries. Like this video, comment below your suggestions, and also press the bell icon after subscribing my channel. That's all for today. So I'll see you in our next video. Till then, take care and bye.